Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our first session for sentence improvement. Before you come for this session, your basics must be clear. You should attend the basic sessions of parts of speech. You should attend the basic session of tenses, verbs and all that, right? Before you come for this session. Okay, because I will not be explaining the basics once again, we'll be directly going to the questions one by one, right? And if your basics are clear, then you can attempt the questions on your own also. So as the question appears on the screen, you should pause the session, you should try it on your own, then only you should watch the solution. Okay, so let's begin this session. Okay, I just read out the direction what we have to do. Which of the phrases A, B, C and D given below each sentence should replace the phrase printed in bold type to make the sentence grammatically correct? If the sentence is correct as it is, mark E as your answer. Okay, so suppose in this first question if I talk about my doctor knew that I would eventually recover and do the kind of work I would be doing before. See, would is past tense of will, but precisely over here this work is already finished, work or whatever, the scene is already, or I can say the action is already finished. Okay, that means मेरे डॉक्टर को पता था कि फाइनली इवेंचुअली मैं रिकवर कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा और जिस तरह से पहले काम कर रहा था उसी तरह से अभी भी आगे भी काम कर पाऊंगा. ठीक है, तो डॉक्टर को पहले से पता था, माय डॉक्टर न्यू दैट. ये जो पोर्शन है वो पास्ट टेंस में है और मैं पहले जैसे काम कर रहा था, दैट मीन्स वो भी जो है पास्ट टेंस में है. पहले काम कर रहा था, वो एक्शन जो है वो फिनिश हो चुका है. ये बात अलग है कि आप अभी भी उसी तरह से काम कर पाएगा ये स्पीकर, लेकिन पहले काम कर रहा था. ठीक है, सो दिस फ्रेज in the which is in bold, it shows a past continuous action which is quite finished now, right? To show this the tense of the verb should be past perfect continuous, right? Not this is future perfect continuous, but we want past perfect continuous, right? Past perfect continuous, that means had been doing. So instead of would be doing, had been doing should be there. Okay, so suppose I take one example. She had been working for this company 2 years ago. Now what does it mean? She had been working for this firm or company 2 years ago. That means now she is not working for this company. Before 2 years, like 2 years ago, she had been working for this firm. इसका मतलब हुआ 2 साल पहले तक वो इस कंपनी में काम कर रही थी पर अभी नहीं कर रही है. ठीक है, तो 2 साल पहले तक काम कर रही थी, वो एक्शन जो है, वो जो भी इवेंट है, एक्शन है, जो भी वो फिनिश हो चुका है, उसका इस कंपनी में काम करने वाला जो एक्शन है वो फिनिश हो चुका है. ठीक है, इसलिए शी हैड बीन वर्किंग. I can take one more example. Suppose Ramesh had been acting in 2 films every year until 2013. मतलब रमेश हर साल 2013 तक, हर साल जब से उसने अपना करियर शुरू किया होगा, हर साल वो 2 फिल्मों में काम करता आ रहा था. मतलब हर साल वो 2 फिल्मों में काम कर रहा था, हम ऐसा कह सकते हैं. अभी क्या सीन है पता नहीं, मे बी वो एक ही फिल्म में काम कर रहा हो, 4 में कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है. बट 2013 तक वो हर साल 2 फिल्मों में काम कर रहा था. ठीक है, तो हमने क्या यूज किया? हैड बीन एक्टिंग. रमेश हैड बीन एक्टिंग. ओके, तो क्या यूज किया हमने? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. सो सिमिलरली यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आना चाहिए, क्योंकि वो जब उसका एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी इसके साथ जो भी मिसहैप हुआ, उसके पहले वो जिस तरह से काम कर रहा था, राइट? सो काम कर रहा था, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. Okay, so it should be had been doing. I'm sure you are clear with the explanation. Next is, if you are thinking about investing overseas, isn't make sense to find an experienced guide. ओके, क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस कि अगर तुम बाहर, ओवरसीज मतलब आउट ऑफ इंडिया, अगर बाहर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें एक एक्सपीरियंस्ड, जिसको अनुभव हो, ऐसे किसी गाइड की जरूरत है? ठीक है, तो नाउ
Just listen to me carefully. The phrase that is in bold is asking a question, right? And the main verb is make. So the correct helping verb should be will be does over here, not is. Okay, doesn't make sense, right? And moreover, any form of to do is used as the helping verb. The main verb is always written in its original form, right? So what will be the correct thing over here? It should be doesn't it make sense? Isn't make sense. Instead of isn't make sense, it should be doesn't it make sense to find an experience guide. ठीक है, वापस मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से समझिए जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है. यहाँ पर जो मेन वर्ब है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है पहले तो, उसके बाद जो मेन वर्ब है वो मेक है, और इसके साथ जो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वो डज आनी चाहिए, ना कि इज, राइट. उसके साथ साथ जब कोई भी टू डू का कोई भी फॉर्म है करने के लिए, टू डू इज व्हाट लाइक इन्फिनेटिव, उसका कोई भी फॉर्म है जो यूज कर रहे हैं हम, तो जो वर्ब है वो हमेशा मेन वर्ब जो है वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, सो डजंट इट मेक सेंस, इट मेक्स सेंस, जिसका पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, इट मेक्स सेंस, और जो नेगेटिव होगा वो होगा इट डजंट मेक सेंस. और हमें क्वेश्चन भी बताना है और नेगेटिव भी बताना है, तो डजंट इट मेक सेंस. ठीक है, क्या तुम्हें ठीक नहीं लगता कि तुम्हें एक एक्सपीरियंस गाइड तुम्हें ढूंढना चाहिए, तुम्हारे पास कोई होना चाहिए. ठीक है, सो डजंट इट मेक सेंस. Okay, that is question as well as negative. You have to be careful about it. Simple present tense में है, question भी है, negative भी है, तो doesn't it make sense? Okay, I can put up more examples. Suppose when you really want to watch a movie, doesn't it make sense to book tickets beforehand? जब तुम्हें कोई पिक्चर देखना है वास्तव में, तो doesn't it make sense मतलब ठीक रहेगा कि तुम पहले से टिकट बुक करा के रखो. ठीक है, so when you really want to watch a movie, doesn't it make sense to book tickets beforehand? Or suppose I can put up one more example. It doesn't make sense to accuse someone unless one has concrete proof. इसका कोई मतलब नहीं कि किसी को आप ऐसे ही किसी पे इल्जाम लगा दो जब तक कि आपके पास कोई अच्छा कॉन्क्रीट सॉलिड प्रूफ ही नहीं है. सपोज मैंने किसी पे इल्जाम लगाया कि उसने मुझे मेरे बारे में कुछ किसी भी तीसरे बंदे को गलत कहा. अब अगर मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है तो मुझे उस पर फालतू इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, राइट. सो इट डजंट मेक सेंस टू एक्यूज समवन अनलेस वन हैज कॉन्क्रीट और सॉलिड प्रूफ. एक्यूज मतलब किसी पे नाम लगाना, इल्जाम लगाना, किसी को भी जिम्मेदार ठहराना. Okay, so it doesn't make sense to accuse someone unless one has concrete proof. So जो doesn't make sense है वो उसके 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. Okay. In addition to enhanced their reputation through strategic use of philanthropy, companies are sponsoring social initiatives to open new markets. Okay, now here the phrase that is in bold starts with to, right, which can be either a preposition or part of an infinitive, right. So therefore it can either be followed by a noun or an original verb, but it can never be followed by the verb which is in past tense, right. So here enhanced, that is in past tense. So it should be, or it must be followed by enhancing, that is, we can say that is gerund, or we can say noun, verb form of noun. A gerund does the work of a noun, has the option which is which has enhancing. Following to is correct. So enhancing following to, that is option this C. Okay.
यहाँ पर ये जो टू है या तो ये प्रीपोजिशन होना चाहिए या फिर हम जो इन्फिनेटिव की बात करते हैं टू डू, टू एक्ट, टू स्विम, टू गो, समथिंग लाइक दैट, तो वो कोई ना कोई इट शुड बी पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव, ठीक है। तो अगर तो ये प्रीपोजिशन है या फिर इन्फिनेटिव है तो इट शुड बी फॉलोड बाय या तो नाउन होना चाहिए या फिर ओरिजिनल वर्ब होना चाहिए। लेकिन किसी भी केस में ये जो है वो किसी वर्ब जो पास्ट टेंस में लिखी हुई, यहाँ पे जो एनहेंस्ड है ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ, इससे फॉलो तो हो नहीं सकता। या तो टू के बाद में ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए या फिर कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। ठीक है, बट किसी भी केस में वर्ब का पास्ट टेंस तो नहीं ही आ सकता है, राइट। सो दैट यू मस्ट बी नोइंग। जो इन्फिनेटिव्स है और जिरंड है, इसका सेशन आप अलग से अटेंड कर लीजिए, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको समझ आएगा कि हमें किस तरह से यूज करना होता है। टू के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ओरिजिनल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, या फिर जो नाउन है वो आएगा। तो यहाँ पर हम जो नाउन का जो हम जिरंड है वो यूज कर सकते हैं। जिरंड इज एक्चुअली नाउन वर्ब, दैट्स जिरंड। सो दैट इज एक्चुअली वर्ब के आगे जब आईएनजी लगाया जाता है दैट इज एनहेंसिंग। यहाँ पर क्या होगा, एनहेंसिंग, दैट इज अ जिरंड, दैट इज नाउन वर्ब। सो अ जिरंड डज द वर्क ऑफ नाउन। जिरंड बेसिकली क्या है, नाउन का ही काम करता है। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, राइट। तो यहाँ पर स्विमिंग क्या, स्विम इज अ वर्ब, उसके आगे आईएनजी लगा दिया तो स्विमिंग बना। स्विमिंग बेसिकली इट्स अ नाउन, लेकिन ये बन किस तरह है, स्विम, दैट इज वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से। सो बेसिकली इट्स नाउन वर्ब, बट हम इसको जिरंड बोलते हैं, ठीक है। और जो जिरंड है वो एक्चुअली एक नाउन का ही काम करता है, ठीक है। तो एनहेंसिंग जो है, तो एनहेंस्ड की जगह हम क्या लगाएंगे, एनहेंसिंग, ठीक है। सो इन एडिशन to enhancing their reputation through strategic use of philanthropy, companies are sponsoring social initiatives to open new market, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, इन एडिशन टू, एक ये काम हो रहा है और उसके सिवाय स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ फिलंथ्रोपी, उसके सिवाय ये स्पॉन्सरिंग सोशल इनिशिएटिव भी हो रहा है ताकि नए मार्केट्स खुलें, ठीक है। तो ये पूरी जो सेंटेंस है उसका मतलब क्या है वो भी मैंने आपको समझाया, और यहाँ पर टू के बाद में एक्चुअल में क्या यूज होना चाहिए वो भी मैं आपको बताया। लेकिन फिर भी इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल का अच्छे से यूज आपको पता होना चाहिए। ओके, आई जस्ट पुट अप वन और टू मोर एग्जाम्पल्स ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। जैसे ही प्रिफर्स रीडिंग बुक्स टू राइटिंग लॉन्ग एसेज या राइटिंग लॉन्ग आर्टिकल्स, ठीक है। क्या मतलब हुआ, रीडिंग बुक्स, रीडिंग मतलब यहाँ पर रीडिंग जो है वो हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं। सो ही प्रिफर्स रीडिंग बुक्स टू राइटिंग, रीडिंग टू राइटिंग। अब ये जो टू के बाद राइटिंग लगाया, अगर ये सिर्फ राइट होता तो टू राइट, दैट इज इन्फिनेटिव फॉर्म, लेकिन यहाँ पर राइटिंग है, दैट इज एक्चुअली जिरंड, दैट इज नाउन, राइट। तो रीडिंग एक एक्टिविटी है, राइटिंग एक एक्टिविटी है। रीडिंग और राइटिंग में हम प्रेफरेंस बता रहे कि मेरी जो प्रेफरेंस है वो रीडिंग से ज्यादा राइटिंग में है, तो आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। सो रीडिंग इज एक्टिविटी, राइटिंग इज एक्टिविटी, दिस इज नाउन, दिस इज नाउन। तो टू के बाद में नाउन का यूज कैसे हो रहा है ये मैंने आपको बताया, राइट। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम इन एडिशन टू का ही ले लेते हैं। सपोज in addition to teaching poor children he also provides them with clothes and food। suppose कोई charity करता है कोई बंदा, तो in addition to, just show you the examples, I just type them। so दोनों examples मैंने type कर दिए। he prefers reading books to writing long essays, and the second is in addition to के लिए, in addition to teaching poor children he also provides them with clothes and food। तो पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे टू के बाद जो यूज हुआ है दैट इज टीचिंग, टीचिंग दैट इज नाउन, टीचिंग इज माई हॉबी, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो वहां पे टीचिंग क्या है, बेसिकली इट्स अ नाउन। सो इन एडिशन टू टीचिंग पुअर चिल्ड्रन ही ऑल्सो प्रोवाइड्स देम विद क्लोथ्स एंड फूड, मतलब पढ़ाने के साथ साथ में वो बच्चों को कपड़े और खाना भी देता है। ओके, तो अब आपको अच्छे से इसका यूज समझ में आ गया होगा। टू के बाद में वो ये जो है इसका कैसे हमें यूज करना है। तो यहाँ पे टू एनहेंसिंग देयर रेप्यूटेशन, राइट।
Now this one. Okay, technology must use to feed the forces of change. Okay, यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो सेंटेंस शुरू जो फ्रेज शुरू हो रहा है वो है मस्ट से. मस्ट जो है वो एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा एक ओरिजिनल वर्ब से जो है वो फॉलो होती है, राइट. अ मॉडल ऑक्सिलरी इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ओरिजिनल वर्ब. सो यहाँ पर बी यूज होना चाहिए, राइट. मस्ट बी. उसके सिवाय क्या है कि टेक्नोलॉजी मस्ट यूज टू फीड द फोर्सेस. टेक्नोलॉजी यूज होती है, टेक्नोलॉजी खुद किसी को यूज नहीं करती, ठीक है. टेक्नोलॉजी यूज होती है, किस तरह से यूज होनी चाहिए वो बताया. सो ये जो सेंटेंस है बेसिकली वो किस में है, पैसिव वॉइस में. अब अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उसके बाद में बी के बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब का जो है वो past participle यूज होना चाहिए, दैट इज थर्ड फॉर्म. सो इट शुड बी मस्ट बी यूज्ड टू. ठीक है. टू के बाद तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आती है. सो टू के बाद में फीड का कोई इश्यू नहीं है, बट टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड टू feed the forces of change. Okay, once again I just explained. It is starting with must, which is a model auxiliary verb. A model auxiliary should always be followed by an original verb. So instead that should be that means there should be be over here. That means after must we should be having be, right. Apart from that, the sentence is in the passive voice. That means the past participle of the main verb should be used. So here instead of use we should be having used, right. So must be used to feed, that is the correct. I can put up one more examples. I just write it for you. See here, two examples I have taken. Traffic rules must be obeyed. Traffic rules जो है must उनको मतलब उनका हमें पालन करना चाहिए. तो अभी ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ओबेड, ये भी जो सेंटेंस है वो भी है पैसिव वॉइस में. बी के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है, मस्ट के बाद में बी आ रहा है. द टैप्स मस्ट बी रिपेयर्ड एज सुन एज पॉसिबल. मस्ट के बाद में बी और इसके बाद में थर्ड फॉर्म. सो दोनों सेंटेंसेस जो है वो पैसिव वॉइस में है, राइट. बिकॉज ट्रैफिक रूल खुद कुछ नहीं करते, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है. टैप्स अपने आप से रिपेयर नहीं होंगे, कोई और उनको रिपेयर करेगा, तो टैप्स को रिपेयर होना है. सो सेंटेंस शुड बी इन पैसिव वॉइस. आई होप यू आर क्लियर. सो टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड टू फीड द फोर्सेस ऑफ चेंज, राइट. The crime has grown rapidly in Russia since disintegration of communist system. Okay, here the phrase that is in bold talks about the crime in general, not about a particular crime. What they are talking about crime in general, not about a particular crime, right? That means the definite article the should not be used over here, right? Now this definite article the that actually particularize a crime. That's why it should be deleted, right? So the correct option is crime has grown rapidly. Instead of the precisely will delete the crime has grown rapidly in Russia since disintegration of the communist system. Once again, the definite article the it particularize crime, right? So we should delete this. We can take more examples. Once again, I'll just write the examples. Okay, population has grown rapidly during the past decade. Honesty has decreased tremendously during the past decade, right? So honesty, population, in the previous case we saw the crime, right? So crime ये भी एक abstract noun है, honesty ये भी एक abstract noun है. तो इनके आगे, और ये हम जनरल सेंस में यूज करें इसलिए इनके आगे द लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो आई हैव गिवन यू टू एग्जांपल्स आल्सो. आई होप यू आर क्लियर नाउ. The performance of our players was rather worse than I had expected. Okay. कहने का मतलब हमारे प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी वो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खराब थी.
Okay, so the phrase needed here must have the comparative degree since it is preceded by the word rather. Okay, and moreover only two things are compared, so the superlative degree is not possible, right? So worse than I had expected, right? Rather है, इसकी वजह से comparative form होना चाहिए use, और सुपर, उसके सिवाय दो चीजें जो कंपेयर करते थे हम सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज करके कंपैरेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं करते हैं। तो रादर जो वर्ड है उसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री ही यूज होती है, और उसके सिवाय जब दो चीजें कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। ठीक है, सो वर्स्ट की जगह वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। सो द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वाज वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। ओके, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था और जो परफॉर्मेंस रही, राइट जो मैंने एक्सपेक्ट किया था पहली चीज, जो परफॉर्मेंस रही वो दूसरी चीज, इन दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट और इसकी वजह से यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। वर्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, सो आई जस्ट गिव यू two examples also. First one is the children are rather quieter today than they usually are. जो बच्चे हैं वो आज रोज के मुकाबले थोड़े ज्यादा आज चुप है। The novel I'm reading is rather more interesting than I thought. I just could not put it down last night. ठीक है, जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, right? Rather is used for comparison. Okay, so the novel I'm reading is rather more interesting. You can see more interesting. So that is comparison. Then I thought I just could not put it down last night. पिछली रात को मैं इसको रख ही नहीं सकी क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं इसको रख नहीं पाई। ठीक है, सो दिस इज, आई होप यू आर क्लियर। It is always better to make people realize the importance of discipline than to impose them on it. ओके, कहने का मतलब क्या है कि लोगों को ये एहसास दिलाना ज्यादा अच्छा है, उनको डिसिप्लिन का एहसास दिलाना ज्यादा अच्छा है उसके बजाय कि हम उनके ऊपर जबरदस्ती करें, राइट? तो हियर the phrase that is in both starts with then. Okay, so it is obviously a comparison. Now the comparison is between making people realize and making people realize the importance of discipline and imposing discipline on them, right? We have the comparison between making people realize the importance of discipline and imposing discipline on them, right? So we can replace discipline in the second phrase by the pronoun it. Okay, and moreover the correct preposition that follows impose is on or upon. Okay, so the phrase will read imposing it on them, imposing it on them. Okay, so imposing it on them, that is correct. Again I explain the same thing in Hindi. It is always better to make people realize the importance of discipline than to impose on them. यहाँ पर then आ रहा है, इसका मतलब obviously एक comparison है। अब comparison किसके किसके बीच में है? एक तो लोगों को जो discipline है उसकी importance realize करवाना, ठीक है, डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करवाना, और दूसरा डिसिप्लिन इम्पोज करना, दो चीजों में हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि जब दो चीजों में कंपेयर करें तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, तो वो बराबर है, यहाँ पर बेटर यूज हो ही रहा है। लेकिन ये जो वर्ड जो डिसिप्लिन है वो हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो इसके लिए हम अब इट यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो इम्पोज होता है उसके साथ में जो करेक्ट प्रपोजिशन जो उसको फॉलो करता है वो या तो ऑन होता है या अपॉन होता है। ओके, एंड डिसिप्लिन के लिए हमें इट यूज करना है, तो इम्पोजिंग इट ऑन देम होना चाहिए, राइट? ये जो देम है ये है लोगों के लिए, इट जो है वो है डिसिप्लिन के लिए। सो इम्पोजिंग डिसिप्लिन ऑन देम, यहाँ पर क्या लिखा? टू इम्पोज देम ऑन इट, लाइक मतलब ये पूरा उल्टा है। इम्पोज देम ऑन इट मतलब लोगों को डिसिप्लिन पर इम्पोज करना है, मतलब ये तो पूरा सेंस ही गलत बैठ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? डिसिप्लिन को लोगों पर इम्पोज करना।
ठीक है. So impose it on them. Impose it on them. This is correct. I hope you are able to understand this. Once again, I'll take 2 examples. Okay. Hurry up. Let us not impose upon Sunil's time. He is a very busy man. It's better to make people realize the importance of hard work than to impose it upon them. Okay. Impose it on them. Impose it upon them. तो दोनों का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा. जल्दी करो. जो सुनील है वो काफी बिजी आदमी है, तो उसके ऊपर अपने उसका टाइम वेस्ट ना हो, इस तरह से हमें कुछ करना है. मतलब जो भी उससे बात करना है, जो भी करना है, वो जल्दी कुछ करना है. ओके. इट इज बेटर टू मेक पीपल, अगेन वैसे ही जो हार्ड वर्क की है इंपॉर्टेंस है वो लोगों को रियलाइज करवानी चाहिए, ना कि उन पर इम्पोज करनी चाहिए कि भाई तुम ये करो. ऐसे इम्पोज करने से अच्छा है उनको हार्ड वर्क की जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, वो उनको रियलाइज करवाओ, उनको महसूस करवाओ. ओके. सो इम्पोज का जो यूसेज है वो आपको क्लियर हो गया होगा. ओके. The crops are dying. It must not had rained. Okay. Here the first part of the sentence, the crops are dying, speaks about a present day consequence which is the direct result of some past action. ठीक है. मतलब अभी जो ये फसलें हैं वो मर रही हैं, वो किसी पास्ट में कोई ऐसा एक्शन हुआ जिसका ये रिजल्ट है. Right. So here the result is dying. Hence the tense of the verb in the past tense to show a compulsory action, right? So must is a modal auxiliary verb is to use to show the compulsion. So ठीक है. Moreover, only the original verb can follow a modal auxiliary that we have already discussed. So here the correct option is must not have rained. Instead of had, we should have here. Have over here, right? Because जो must के बाद में ओरिजिनल वर्ब ही आनी चाहिए. जस्ट एक्सप्लेन इट वंस अगेन. द क्रॉप्स आर डाइंग. जो फसलें हैं वो मर रही हैं या खराब हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, क्योंकि बारिश नहीं हुई है. मतलब बारिश नहीं हुई है पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये फसलें जो है मर रही है. अब पास्ट में क्या हुआ है? बारिश नहीं हुई है. ठीक है. तो अब जो यहाँ पर क्या है, कंपल्शन का सेंस है कि बारिश नहीं हुई इसलिए जो है ये फसलें मर रही है. ठीक है. तो यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करें दैट इज मस्ट. अब मस्ट के बाद में जब भी हम वर्ब यूज करेंगे वो ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर जो हेड है उसकी जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हैव, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो द क्रॉप्स आर डाइंग. इट मस्ट नॉट हैव रेन्ड. फसलें बर्बाद हो रही हैं क्योंकि मतलब बारिश नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई है, इसकी वजह से जो है वो फसलें बर्बाद हो रही है. वंस अगेन आई जस्ट गिव यू 2 एग्जांपल्स हाउ टू यूज मस्ट एंड हैव कॉम्बिनेशन. सुनील स्कोर्ड 90% इन मैथमेटिक्स. ही मस्ट हैव स्टडीड हार्ड. अब यहाँ पर पास्ट में क्या हुआ था कि उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, और ये जो स्कोर 90% किया है इस बहुत अच्छे से पढ़ाई करने का रिजल्ट है. मतलब उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी तभी उसको ये रिजल्ट मिला. सो सुनील स्कोर्ड 90% इन मैथमेटिक्स. ही मस्ट हैव स्टडीड हार्ड. No one has come for the party. They must not have received the invitation, right? अब पास्ट में पहले क्या हुआ? उन्होंने इनविटेशन भेजा होगा, उसके बाद में हर एक को आना था, तो कोई भी नहीं आया क्योंकि उनको इनविटेशन लेटर जो है वो नहीं मिला था या नहीं मिला होगा. ओके. सो दे मस्ट नॉट हैव रिसीव द इनविटेशन. सो दिस, कोई भी आया नहीं है. क्यों नहीं आया? ये इसका रिजल्ट है. इनविटेशन नहीं मिला, ये एक इवेंट है या एक इंसिडेंट है या एक घटना है, जो भी है एक एक्शन है, और ये उसका रिजल्ट है. ठीक है. तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी, ये उसका रिजल्ट है. इनविटेशन लेटर नहीं मिले, ये उसका रिजल्ट है. सो यहाँ पर इट मस्ट नॉट हैव रेन्ड, तो ये जो क्रॉप्स है वो क्रॉप्स आर डाइंग, ये उसका रिजल्ट है. ओके. तब आपको मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज समझ आ गया होगा. मस्ट के बाद में मस्ट नॉट या मस्ट, मतलब प्रिसाइसली मस्ट के बाद में ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है. ओके. ओके. They all were shocked at his failure in the competition. वो
किसी एक बंदे की कंपटीशन में जो फेलियर हुई उससे बहुत लोगों को शॉक लगा, राइट. नाउ ओवर हियर इन दिस sentence, though the preposition and verb are correct, but the arrangement of the words, or we can say the syntax, is erroneous. The places of the words this were and all should be interchanged, right? They were all shocked. They were all shocked at his failure in the competition. Okay, or alternately what we can do is the sentence can also be written as all of them were shocked at his failure in the competition. All of them were shocked at his failure in the competition. Okay, so this can also be written. So over here, all they were all shocked at. This is the correct one. Just give you two more examples for this. ओके ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में, वो तो आपको पता चली गया होगा. उन सबको शॉक लगा, वो सब शॉक्ड हुए, राइट. दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कंपटीशन. ओके, जस्ट गिव यू टू एग्जांपल्स. ओके, तो इसका यूसेज, ऑल का यूज कैसे हो रहा है. दे वर ऑल इन्वाइटेड टू राहुल्स बर्थडे पार्टी. उन सबको राहुल की बर्थडे पार्टी के लिए इन्वाइट किया गया था. सेंटेंस पास्ट, सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस, राइट. और ऑल और वर, इसका जो अभी मैंने आपको बताया ऑर्डर जो है वो गलत है, इंटरचेंज होनी चाहिए. पोजीशन वो देखिए यहाँ पर भी सेम है. ऑल वर, यहाँ पे ऑल आर, सो आर ऑल. वी आर ऑल, राइट. द पोजीशन जो क्या है वो आर ऑल. वी आर ऑल गोइंग फॉर अ पिकनिक ऑन सैटरडे. हम सैटरडे को हम सब लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, हम सब. वी आर ऑल. सो दे वर ऑल, नॉट ऑल वर, दे वर ऑल. ओके, तो आपको क्लियर हो गया अभी. He is too impatient for tolerating any delay. मतलब इम्पेशेंट मतलब जिसको जरा भी धैर्य नहीं, धीरज नहीं है, तो वो उसको जरा भी पेशेंस नहीं है, कुछ भी देरी को वो टॉलरेट कर सके, इतना पेशेंस उसको नहीं है, राइट. नाउ एनी फ्रेज विथ टू, हियर वी हैव टू इम्पेशेंट. सो एनी फ्रेज विथ टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब, राइट. सो ही इज टू इम्पेशेंट, और इसके बाद में हमें होना चाहिए टू टॉलरेट, राइट, क्योंकि टू के साथ वर्ब इस तरह से फॉलो होना चाहिए. सो टू इम्पेशेंट टू टॉलरेट. ओके, कोई भी फ्रेज जो टू के साथ में हो, जैसे यहाँ पर टू इम्पेशेंट है, वो किससे फॉलो होना चाहिए, एक इन्फिनिटिव से फॉलो होना चाहिए, राइट. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, टू टॉलरेट. दूसरी बात क्या है कि जो एडवर्ब टू है, यहाँ पर टू क्या है, एडवर्ब है. इसका जो दैट मीन्स इट हैज अ नेगेटिव इन्फ्लेक्शन, राइट. सो दस द सेंटेंस मीन्स दैट ही इज सो इम्पेशेंट दैट ही कैन नॉट टॉलरेट एनी डिले. ठीक है, ही इज सो इम्पेशेंट दैट ही कैन नॉट टॉलरेट एनी डिले. सो ही इज टू इम्पेशेंट टू टॉलरेट एनी डिले. ठीक है, टू का जो सेंस है वो नेगेटिव है, मतलब ये कि वो उसको जरा भी पेशेंस नहीं, चाहे यहाँ पर नेगेटिव नॉट जो वर्ड है वो यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जो टू है उसका जो इन्फ्लेक्शन है वो खुद ही नेगेटिव है. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतना इम्पेशेंट है कि वो कोई भी देरी जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकता. ही इज सो इम्पेशेंट दैट ही कैन नॉट टॉलरेट एनी डिले, या फिर ही इज टू इम्पेशेंट टू टॉलरेट एनी डिले. दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है, टू नेगेटिव इन्फ्लेक्शन. Okay, I just give you two examples for two also. The tree is too tall for anyone to climb. ओके, अब यहाँ पे भी देखिए टू का जो वो इन्फ्लेक्शन है वो नेगेटिव है, मतलब ये पेड़ इतना लंबा है कि कोई इस पे चढ़ नहीं सकता है. ठीक है, ही इज टू ऑनेस्ट टू चीट एनीवन. वो बहुत ईमानदार है कि वो किसी को चीट नहीं करेगा. मतलब जो सेंस है वो, मतलब जब नेगेटिव हमें सेंस देना है तो हम टू यूज कर सकते हैं. ओके, सो वर्ड टू के डिफरेंट यूसेज आपको समझ आए होंगे, और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि टू के साथ कभी भी इन्फिनेटिव यूज होता है. सो यहाँ पे देखिए, टू टॉल टू क्लाइंब, टू ऑनेस्ट टू चीट, राइट. सो टू. I hope you are clear.